Welcome back. A day after Bihar Assembly passed the contentious Bihar Special Armed Police Bill, opposition in Bihar continued its protest and abstained from legislative duties. FIRs have actually been registered now against RJD leaders Tejasvi Yadav, Tej Pratap Yadav and several others. But the protest continues. The massive face-off between the Bihar government and the opposition continued on day 2 in the state of Bihar. Listen to Tejasvi. नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है, आती है जाती है। ये नीतीश कुमार जी सी ग्रेड पार्टी सी ग्रेड नेता जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। So, Nitish Kumar, the Chief Minister, came down heavily on the protesting MLAs and of course responded to all of these allegations that are being made. कौन सा दोषी अधिकारी क्या किया? वही जो मारपीट किया विधायक, कहाँ किया? उन लोगों ने क्या किया वो तो वो ना बताएं अपना। ये कौन सी कार्रवाई? हम तो जानते नहीं हो तो अपना तो एक्सप्लेन करें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया और कोई मारपीट किया। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदस्य बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो ना बताएंगे। This comes a day after the dramatic scenes that unfolded when opposition protests turned ugly, not just outside on the streets where lathi charge and water cannons were used, but also inside the assembly. And that's what Nitish Kumar was referring to. The opposition MLAs gherawed the speaker's chambers as things got really unruly inside the assembly. And the next thing we knew that the riot police had been brought in, an entire unit had to be brought in. And then the MLAs were actually being dragged and thrown out of the assembly. Some of them injured, carried in stretchers and rushed to the hospital. Others sitting there outside the assembly, continuing with their protest. I mean, the scenes yesterday were really shameful. Now, we don't know what started it, what pushed the police, the riot police, to act in such a manner against elected legislators of a state. So we're going to ask that question to the politicians. And then we will also talk about this new bill. What is it about and why is it being called draconian? Well, this is essentially a bill that the Bihar government has brought in to create a special unit, a special police force or a special security force, similar on lines of CISF. And their argument is that we need to make this state safe for industrialization. And so we need this special force for that. But some of the powers that the security personnel will have under this actually includes the authority to arrest, the authority to search without any warrants, and immunity from the action that you take, which is why you are actually seeing several questions being raised by the opposition parties who are calling it draconian and such a massive outrage. So let's say good evening to the panelists who are joining us on this conversation from the state of Bihar. Chitranjan Gagan, spokesperson for the RJD, Syed Afzal Abbas, senior leader of the JDU. Mr. Abbas, आपसे शुरू करते हैं. पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया असेंबली में कल कि नेताओं को, इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स को उठा के बाहर फेंका जा रहा था और पीटा जा रहा था। मिस्टर अब्बास, आपने शायद म्यूट कर दिया है, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी आवाज मिल रही है? हाँ जी। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखने को मिला। इससे पहले तो हम भी जानते हैं
लेकिन ये बात दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि संसदीय परंपरा के खिलाफ रहा। मेरा ये मानना है कि हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का लोकतंत्र में आजादी है, करना भी चाहिए। लोकतंत्र की बुनियाद जो है विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन क्या किसी स्पीकर को बंद कर दिया जाए, कैप्टिव बना दिया जाए, किसी को बंधक बना दिया जाए, महिला विधायक के सहारे उनके तीनों दरवाजे बंद किए जाए और स्पीकर के आसन पे जाके विधायक बैठ जाए, तो ये कभी शोभा देता है कि ये स्पीकर का काम है, ना कि सरकार का। ये स्पीकर मालिक होता है, स्पीकर के आदेश पे हुआ है, ना कि नीतीश कुमार जी के कहने पे हुआ है। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि विधायक को पीटा गया, ऐसा किया गया, तो ये परिस्थितियां उस पर क्यों हुई, ये सवाल ये इससे होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने इससे मजबूर कर दिया कि बाहर से फोर्स बुलाने की जरूरत पड़ गई, इसीलिए तो उनको हटाया गया। कहीं इस तरह की जब बातें होती है, ऐसा क्या किया विपक्ष ने अब्बास जी, ऐसे क्या मजबूरी थी कि बाहर से रायट पुलिस को बुलाना पड़ा इनको मार पीटने के लिए और उठा उठा के फेंकने के लिए? जब स्पीकर ऐसी शख्सियत को जो बंद कर दिए, कैप्टिव बना दिएगा, बंधक बना दिएगा, तब क्या होगा बताइए आप? क्या ये भी गलत है? विजुअल में नहीं आ रहा है क्या? अब विजुअल में आप देखेंगे कि उनके प्रवक्ता है, पार्टी के लीडर, आरजेडी के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं भाई वीरेंद्र, वो जाके बैठ गए थे आसन पे। तो ये तो कहीं संसदीय परंपरा का उल्लंघन तो किया लोगों ने, अब उसी पे एक्शन लिया गया। आप हाथापाई की नौबत आ गई, बाहर पत्थरों का इंतजाम था जो बहुत से चैनलों ने दिखाया भी है। तो ये तो सुबह से मैं पटना में हूँ और सुबह से जेपी गोलंबर से प्रोटेस्ट करने का जो प्रोग्राम इनका बना था, जबकि इजाजत नहीं थी प्रोटेस्ट करने के लिए, अलग प्रेस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका तो इंटेंशन शुरू था कि ऐसा कोई नॉनसेंस क्रिएट किया जाए। वो नॉनसेंस क्रिएट करने का नतीजा ये हुआ कि आज आप लोग चितरंजन गगन जवाब दीजिए, जब आप स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, उनको कमरे में बंद कर देंगे, तो और फिर क्या किया जाएगा? तन्वी जी, अब्बास साहब जो सफाई दे रहे हैं, स्पीकर के बहुत गरिमा का ख्याल है इनको। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि इनके मंत्री जो है सो थ्रेटनिंग दिए चेयर को उंगली दिखाकर कि आप हमको गाइड नहीं कर सकते हैं। आज इनको सदन की गरिमा याद आ रही है। उस दिन वह कहाँ चला गया था जिस दिन एक मंत्री चेयर को जो है सो सीधे तौर पर चुनौती और धमकी देने का काम कर रहा था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सवाल यह क्यों, सवाल है कि विपक्ष है, विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। विपक्ष को आप बात नहीं रखने दीजिएगा और आनन फानन में आप किसी भी जो भी इतना महत्वपूर्ण बिल जो कि समझिए कि सीधे संविधान की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है, जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोकतंत्र की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है, संसदीय जो परंपरा रहा है उसके खिलाफ है। और इस ढंग से आप जो है आनन फानन में कानून ला रहे हैं बगैर उस पर डिबेट के, कोई अति करके। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो है सो स्पीकर को कैद कर लिया गया। अब्बास साहब कह रहे हैं कि इनको याद नहीं है। वास्तव में कल की जो घटना घटी है, भारतीय संसदीय इतिहास में कल का दिन काला दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो यूनिफॉर्म में पुलिस जो है सो सदन के अंदर प्रवेश करे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन प्रवेश ही नहीं किया जिस ढंग से ब्रूटली विधायकों को, माननीय विधायक को जिसको आप माननीय कहते हैं, उसको आप पीट रहे हैं। महिला एक जो है सो अनीता देवी जो मंत्री रह चुकी हैं, जो विधवा महिला हैं, जो अति पिछड़ी जाति से, नुनिया जाति से आती हैं, उनका जो है सो सरेआम खुलेआम जो है सो द्रौपदी का जैसे चीर हरण हुआ था, उस ढंग से आप उनको नंगा करने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं। यह सब हरकत हो रहा है। आप जो माननीय विधायक को पुलिस जो है सो बूट पहनकर और उसको लात से मार रहा है। अब इससे बड़ा होना और क्या हो सकता है? एक जो ये लोग कर रहे हैं, एक जो मैं तन्वी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो कर रहे हैं कि आप स्पीकर को आप बंद कर दिए, यह विरोध करने का एक तरीका है और कोई पहली बार नहीं वैसा हुआ है। बिहार के विधानसभा में ऐसी घटना घटी है जिसके विपक्ष में जब नीतीश कुमार थे और 1 घंटा 2 घंटा नहीं 48 घंटा विपक्ष के विधायक सदन के अंदर बैठे रहे, दिन रात उसी में बैठे रहे 48 घंटा। लेकिन उस समय भी पुलिस को नहीं बुलाया गया था और कल पुलिस को बुलाकर जिस ढंग से जो है कलंकित किया गया। और आज की मैं घटना बता रहा हूँ तन्वी जी, मुख्यमंत्री जी सफाई दे रहे हैं
काउंसिल की बात है। काउंसिल में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, खड़ा होकर ये अंगुली से धमकी दे रहे हैं, और उसके बाद इनके 2 विधान पार्षद। ठीक है अभी मैं ठीक, आपकी दोनों साइड के हमने सुन लिया, पर एक क्वेश्चन अब्बास जी से ये भी है कि इस जगह पे हम पहुंचे कैसे, क्यों नौबत आई इस चीज की? अगर आप एक नया लॉ लाना चाह रहे हैं तो उसको असेंबली में आराम से उस पर चर्चा भी तो की जा सकती थी। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हुई भी है। क्या ये बिल की कॉपी इनके माननीय विधायकों तक पहुंची या नहीं पहुंची, इसका सवाल पूछिए। क्या इनसे पूछिए कि हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी को पता था बिल क्या है? सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। आप ये बताइए, सीआईएसएफ की तरह बिहार में की पुलिस भी, बीएमपी पुलिस अगर काम करे तो क्या गुनाह है? मेट्रो है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, बहुत से प्रतिष्ठानों के लिए किया जा रहा है। क्या इसको अधिकार दिया गया कि किसी के घरों में घुसने की बात है? अगर कोई एयरपोर्ट पे इसको लगाया जाता है, अगर वो कोई संदिग्ध अवस्था में मिले तो उसके लिए परमिशन जब तक लिया जाए तब तक क्रिमिनल भाग जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसको पावर दिया जाए तो ये देश हित में, बिहार हित में था। लेकिन इसको जनता को गुमराह करने के लिए आरजेडी की बड़ी साजिश थी। हम बेनकाब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांव-गांव तक पहुंचाएंगे क्यों दिग्भ्रमित किया गया। आज ठीक है, on the merits of this bill we will definitely have a detailed conversation tonight. I believe it was more important to discuss the kind of scenes that emerged from Bihar, from Patna, inside and outside the assembly yesterday, and the way this whole matter has been dealt with. Thank you to Syed Afzal Abbas as well as Mr. Gagan for joining us on this conversation. But viewers, we know that our politicians aren't always the epitome of gentle behavior or courteous behavior. We have for decades now seen unruly scenes from various state assemblies, violent scenes from assemblies and even inside our parliament houses. But frankly, what happened yesterday should not have happened. It was still unprecedented. And both sides, the legislators and those who ordered the police to behave in such manner, must introspect. What kind of example are we setting for this country? Thank you for joining us.